Welcome student, welcome to the next topic, that is where are most of the people employed. So before understanding where are the most of people employed, we have to understand the three graphs, that is graph 1, graph 2, graph 3, because they are related to the upcoming topics to be understood. So GDP, basically all the three graphs are showing GDP in the different context of primary, secondary and tertiary sector of production. Take here, when we talk about production, it doesn't mean that production related to secondary sector only. Here we are talking about overall production of primary, secondary and tertiary sector. So graph 1 shows the GDP by primary, secondary, tertiary sectors in terms of economy or money. How much money does all the three sectors contribute in the national economy? So here the data is between 73-74 to 13-14. So graph 1 is showing and here it is showing the change in the primary, secondary and tertiary sector in 1973-74 to 2013-14 in context to economy or income. But graph 2 is showing the percentage. Same thing, it is showing the GDP in terms of percentage. How much percent of which sector is contributing in overall GDP, gross domestic production. And here we can easily see that the tertiary sector is growing very far more than primary sector and secondary sector. Primary sector is decreasing, secondary and tertiary sector is increasing as comparison to 73-74 data. And the last graph which we will talk about is the share of sectors, all the three sectors, primary, secondary, tertiary, share of sectors in terms of employment. How much percent of people are employed in primary sector and secondary sector, tertiary sector in 72-73 and 11-12. So here you can easily see 27, 24, 49. This is percent. So in a simple language we can understand that in every 100 people in 72-73, 15 were employed in tertiary, 11 were employed in secondary and 74 were employed in primary sectors, which have now changed to 49 in primary, 24 in secondary and 27 in tertiary sectors. So if we simply talk, then if we will simply talk about the three sectors, we will say in 11-12 50% are in primary and 50% are both in 24 in secondary and tertiary. So secondary and tertiary comprises of half population, working population employed in these two sectors as comparison to primary sector. So now let's come to the main topic. So अब सीधा टॉपिक पे आते हैं. तो आई होप आपको तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे. टॉपिक कहता है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. ग्राफ 2 का बता दिया हमने. ग्राफ 2 आपका परसेंटेज दिखा रहा है. ठीक, तो ग्राफ 2 present percentage share of the three sector GDP. Now you can directly see the changing importance of the three sector over the 40 years. तो ग्राफ 2 में दिखा रहा है कि किस तरीके से किस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा हुआ है. आप खुद ही देख रहे हैं कि सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा क्योंकि ये इतना ग्रो करा है ना. प्राइमरी घट गया, टेरिटरी घट गया. तो क्या प्राइमरी घटना सही था या गलत था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक, तो 40 साल के अंदर किस तरीके से परसेंटेज किस सेक्टर का कितना बढ़ा है. व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपेंस इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ. एम्प्लॉयमेंट में जब प्राइमरी इतने से इतना घटा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट 50% का कैसे सस्टेनेबल रहा है ना. तो ये डाटा और इस डाटा में अंतर होगा क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है. इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. तो पहले ये इतना ज़्यादा होते हुए भी टेरिटरी सेक्टर इसमें 27% लोग ही वर्क कर रहे हैं और 24% आपका सेकेंडरी सेक्टर में, जबकि इनका रेशियो परसेंटेज में ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इन सेक्टर्स में अब इनफ जॉब पहले क्रिएट नहीं थी. अब इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. तो ज़्यादा जॉब्स ना होने के कारण अभी भी लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इवॉल्व हैं. तो even though industrial output or the production of the goods went up more than 9 times during the production. ठीक, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का बता रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में आप देखेंगे कि ये 9 टाइम्स बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना बढ़ा. दोनों ग्राफ को कंपेयर कर रहा है, ग्राफ 2 ग्राफ 3 में. तो इंडस्ट्रियल मतलब सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा है. इवन दो द इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप 3 टाइम्स. सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 9 टाइम्स है सेकेंडरी का, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो खाली 3 टाइम्स है. 11 का 3 टाइम्स है ना. सेम अप्लाइज टू द टेरिटरी सेक्टर. टेरिटरी सेक्टर में ये दोनों देखिए सेकेंडरी और टेरिटरी का बता रहा था. टेरिटरी सेक्टर में जो आप देखेंगे सर्विस सेक्टर 14 गुना बढ़ा, बट उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो खाली 5 टाइम्स बढ़ा है ना. तो एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर्स रोज बाय
5 टाइम्स। तो आई होप ये डाटा कंपेयर करके आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इस पैराग्राफ को ये मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखवा देंगे। तो ये पूरी डाटा समझने के बाद हमको कंक्लूजन में क्या समझ में आता है, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली इन द क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। ठीक, तो अगर आप जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में इसका सिर्फ खाली एक क्वार्टर है, क्योंकि 1 2 3 4 अगर 4 हिस्सों में बांटे तो प्राइमरी सिर्फ क्वार्टर है, बट इसमें जितने लोग एम्प्लॉयड हैं 50% लोग एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से जीडीपी में इसका परसेंटेज लगभग हाफ है। बताया ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेकेंडरी एंड द टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी का कर लिया। सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो सेक्टर्स प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। प्रोडक्शन इसका 4/5 है ना, उसका लगभग हाफ है, और इसका प्रोडक्शन लगभग 4/5 है, उसके बावजूद भी ये कितना परसेंट एम्प्लॉय कर रहा है, लेस देन हाफ परसेंट, है ना। तो 50% आपका प्राइमरी में और 50% आपका सेकेंडरी और टेरिटरी में। समझिएगा इस डाटा को बैठ के आराम से, नहीं समझ में आएगा तो स्कूल में डिस्कस करेंगे। डज दिस मीन्स दैट द वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। तो क्या आपको लग रहा है कि वर्कर्स क्या उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्या जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए? अगर इतने आधे लोग प्राइमरी सेक्टर में है तो उसका जीडीपी में हाफ क्यों नहीं है ना? जीडीपी में उसका कम क्यों जा रहा है परसेंटेज? आप देखेंगे खाली इतना सा परसेंटेज क्यों जा रहा है लगभग, जब 50% लोग वर्क कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि जितने लोग वर्क कर रहे हैं उतना वो आउटपुट नहीं दे रहे हैं? तो आगे क्या कहता है, व्हाट इट मीन्स दैट, इसी क्वेश्चन को लिखिएगा, समझिएगा, और इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे आगे। तो इसका मतलब वही जो पूरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन द एग्रीकल्चर देन इट नेसेसरी। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर का जीडीपी पे जितना रोल है भाई उससे ज़्यादा लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। 50% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है, जबकि प्रोडक्शन इन जीडीपी उसका जो है लगभग बहुत कम है ना, 1/4 है। लेकिन आप वर्कर्स की बात करेंगे तो 50% है। तो क्या ज़्यादा वर्कर्स हैं? तो वही कह रहा है कि जितनी ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप उसमें से कुछ लोगों को बाहर भी निकाल देते हैं तो प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन करना होना चाहिए उतना हो रहा है, बट उसमें ज़्यादा लोग लगे हैं, इसकी वजह से आपको ज़्यादा 50% दिख रहे हैं, बट उतना आउटपुट जीडीपी में उसका नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। हम लोगों ने इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था। इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में। हम लोगों ने यहाँ पढ़ेंगे आगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में कि वो दिख तो रहे हैं एम्प्लॉयड, बट 50% की जरूरत नहीं है, वो काम कम लोग भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट तो हमको प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा दिख रहा है, बट उतना उसमें जीडीपी में आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो एग्जाम्पल से समझे, फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर। एक छोटे फार्मर का केस लेते हैं जिसका नाम लक्ष्मी है। ओनिंग लैंड, ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडिंग ऑन द रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप लाइक ज्वार एंड अरहर। तो लक्ष्मी एक फार्मर है, ठीक, स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है जो अनइरिगेटेड है, और उसको बारिश के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपनी खेती के लिए। और क्या उगाती है? ज्वार और अरहर। ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्कड इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। उसके परिवार में जितने भी 5 लोग हैं वो उनके खेतों में पूरे साल काम करते हैं। वाई? दे हैव नो वेयर एज टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास कोई और काम है नहीं, तो इसीलिए सारे परिवार मिलकर खेत में काम करता है। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। काम करते हुए देखेंगे तो आपको दिखेगा उसके परिवार में 5 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। तो अगर सीधी सी बात करें तो जो एक आदमी का काम था वो 5 लोगों में बढ़ गया है। ईच वन इज डूइंग द सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। 5 लोग काम कर रहे हैं बट कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि एक आदमी का काम 5 लोग कर रहे हैं, 2 आदमी का काम 5 लोग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है 2 आदमी का काम 5 लोगों में बढ़ गया है, और कोई भी एक आदमी पूरा काम नहीं कर रहा है। तो ईच वन इज डूइंग द सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। तो कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिख तो रहा है बट वो एक्चुअली में एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि वो पूरा काम नहीं कर रहा है। वेयर द पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, जहां पे लोग अपेरेंटली काम तो कर रहे हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। बट वहां पे सारे लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में दिखता है 5 लोगों का काम, 1 से 2 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं, तो 5 लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, बट सीधी सी बात है कोई भी एक आदमी पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, जिसकी वजह से ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में चला जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज hidden in contrast to some who does not have a job and is clearly visible
एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीधी सी बात है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन, ये उसको दिखा रहा है हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्लियरली देख रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है, हेंस इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ। तो अगर आप देखेंगे दिख तो रहा है एम्प्लॉयड, बट छुपा हुआ वो एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयड ही है या अनएम्प्लॉयड ही है। उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करता है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages. उसी गांव का जो लैंडलॉर्ड है सुखराम, अगर वो उसके परिवार में कुछ लोगों को हायर कर लेता है, 2 मेंबर्स को अपने यहाँ खेत में काम करवाने के लिए, तो अब वही 5 लोगों में से 2 लोग अब दूसरा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस लक्ष्मी की जो फैमिली है वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाएगी। अदरवाइज वो वही इनकम अर्न करते जो लक्ष्मी या उसका 1-2 लोग करते, वही 5 लोग कमाते, है ना। मतलब जो 2 लोग की इनकम थी वो 5 में डिवाइड हो जाती। अब वो जो 2 लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अब एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people to look after the small plot, क्योंकि उस छोटे सी जमीन को देखने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। 2 people moving out does not affect production on their farm. अगर 2 लोग उसमें से बाहर भी चले गए तो प्रोडक्शन किसी भी तरीके से प्रभावित इफेक्ट नहीं हुआ। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people may move to work in a factory. Once again the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much as फ्रॉम देयर लैंड। अगर 2 लोगों को लैंडलॉर्ड ने रख लिया, 5 लोग थे ना, एक आदमी का काम 5 लोग कर रहे थे, अब 2 लोग अगर किसी फैक्ट्री में जाके काम करने लगे तो इनकम और बढ़ जाएगी और उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो अभी भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अब वो काम एक आदमी का था जो एक आदमी कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या 50% लोग प्राइमरी सेक्टर में इवॉल्व हैं, तो क्या वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्या, जिसकी वजह से जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना लेस है। तो हमने समझा कि ऐसा नहीं है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो सही है, बट जो 50% लोग एम्प्लॉयड है वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो 50% लोगों की वहां पे जगह नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे अगर सुखराम उसको ना रखता और कोई फैक्ट्री में काम ना मिलता तो जाहिर सी बात है ये 5 लोग अभी भी यहीं काम कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब तक उनको प्राइमरी सेक्टर के बाहर टेरिटरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं था या वहां पर इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर में लोगों की संख्या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थी, यही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत समझ के लिखिएगा। इसका आंसर ये मत लिखिएगा कि प्रोडक्शन कम है प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन सही है जीडीपी में, वहाँ पे लोगों का एनरोलमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे उतना प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है ना कि प्रोडक्शन कम है। ठीक, देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। इंडिया में लक्ष्मी की तरह लाखों फार्मर्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड प्रोवाइड देम विद द प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। तो सीधी सी बात है, जो लाखों लोग भारत में खेती कर रहे हैं लक्ष्मी की तरह, अगर उसमें से कई लोगों को अगर हम निकाल के दूसरे सेक्टर्स में काम दे दें तो एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा या सफर नहीं करेगा। द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप द अदर वर्क्स वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। बल्कि क्या होगा कि जो उनका पारिवारिक आमदनी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनमें लोग जो है वो खेती के साथ साथ दूसरे काम भी कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि फार्मर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है, अगर हम उनको दूसरे सेक्टर्स में वर्क दें तो उनकी इनकम, फैमिली इनकम बढ़ेगी, है ना। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। For example, there are thousands of casual workers in service sectors in urban areas who search for the daily employment. They are employed as painters, pump plumbers, repair person, other doing odd jobs. तो आपने देखा होगा शहरों के अंदर हजारों लोग ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले आते हैं जो कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल मतलब रेगुलर वर्कर्स नहीं होते हैं ना। आप देखेंगे वो अर्बन शहरों में आपने देखा होगा लेबर्स जो प्लम्बर्स का काम करते हैं, पेंटर्स का काम करते हैं, रिपेयर पर्सन होते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, जितने ऑड वर्क्स होते हैं, रेगुलर वर्क्स नहीं होते, इसलिए इसको कैजुअल बोला गया है। सिमिलरली वी सी दैट पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर्स ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट ऑन सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। दूसरी तरफ ये तो हो गया जो ऊपर वाले थे, ये तो हो गया आपका
सर्विस सेक्टर में ना, सर्विस सेक्टर में और भी कई सारे आ जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कई लोग जो है वो काम करने के लिए ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और वो पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, जबकि उनकी इनकम जो है वो बहुत लेस है। और कई लोग कम काम कर रहे हैं और उनकी इनकम ज़्यादा है ना। तो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो ये काम करने के लिए मजबूर है, जो ठेला चला रहे हैं, जो रिक्शा लगा रहे हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, है ना, पूरा दिन चला रहे हैं, बट उनकी इनकम कंपेरेटिव टू पर डे के हिसाब से बहुत कम है। अब वो ये काम करने के लिए मजबूर हैं, वो शौक से नहीं कर रहे हैं, वो काम करने के लिए मजबूर हैं। तो सीधी सी बात है, सर्विस सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में अभी इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से 50% एम्प्लॉयमेंट आपका प्राइमरी और 50% आपका सेकेंडरी और टेरिटरी दोनों में देखने को मिलता है। अगर आप इस ग्राफ को फिर से देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में, तो 27, 24, 51, 49, तो लगभग 50% प्राइमरी सेक्टर में, 50% इन दोनों सेक्टर में इवॉल्व है। तो 50% होने के बावजूद भी जीडीपी में इसका रोल इतना कम क्यों है? क्योंकि ये जो 49 लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, 49 लोग की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, तो इस 49 लोगों में से कुछ लोगों को इन दोनों सेक्टर में भेजा जा सकता है और यहाँ पे लोगों की संख्या कम की जा सकती है। और जब ये इस सेक्टर में जाएंगे तो इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है? क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया क्या है? क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा एट द एंड। चलिए, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये टेबल भरने की कोशिश करिएगा, उन्हीं ग्राफ से एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा। लास्ट टॉपिक है आपका हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। चलिए, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।